then you can write down all these three ways to filter the data from the table. Selected rows and all the columns, selected columns and all the rows, and selected rows and selected column. So these are three ways to filter the data in the relational model. So the next one is the update command. Update command is used to change or modify the data values present in the table. And if you want to update the content, then the syntax for the update command is update table name, then set column name equal to expression. And if you want to use more than one column name, then set column name 1, expression 1, column name 2, expression 2. Is it clear? With the help of this, you can update all the rows present in the table. And if you want to update specific records, so for that you can use where condition. वहाँ पे आप where condition use करोगे. So on the basis of these two things, we can update the content of a table where we can update all the rows and we can update the selected set of rows from the table. Is it clear? Yes, ma'am. So first one is updating all the rows. अगर सारी की सारी रो आपको अपडेट करनी है, then update syntax for that is beta update table name, set column name आप यहाँ पे करोगे. For example, you want to set the values of address. So here write down address equal to एड्रेस को आपको यहाँ पे चेंज करना है, तो जो भी आप यहाँ पे एड्रेस देना चाहते हो, देन अकॉर्डिंग टू द कॉलम स्पेसिफिकेशन यू कैन चेंज द नेम ऑफ ऑल द कॉलम्स. यहाँ पे आप दे सकते हो फॉर एग्जांपल, नहीं बेटा वेयर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आप पहले सारी रोज का करोगे. रोता को आप सिंगल कोट में लो. क्लियर? नाउ एग्जीक्यूट इट. इट इज वायलेटेड बिकॉज फॉर द एड्रेस हमने यूनिक कंस्टेंट लिया हुआ है. ठीक है, तो आप दूसरा कॉलम यूज करो जहां पे आपका कंस्टेंट ना हो यूनिक. टेबल में आपका दूसरा क्या था? एज. इज इट क्लियर? सो 10 रोज अपडेटेड. तो ये आपका होगा जहां पे आप सारी की सारी रोज को अपडेट कर सकते हो. एंड इफ यू वांट टू update the selected set of rows, then for that purpose where condition is used. ठीक है, यहाँ पे आपकी सारी की सारी अपडेट हो चुकी हैं. अगर आपको सेलेक्टेड करनी है तो अब आप यहाँ पे लिखोगे अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम, जिसको भी आपको अपडेट करना है. सेट एम्प्लॉय नेम आप कर दीजिए. सेट एम्प्लॉय नेम इक्वल टू, यहाँ पे जो भी आपको देना है बेटा आप डाल सकते हो. कोई भी नाम आप मेंशन कर दीजिए सिंगल कोट में.
where salary equal to, अब आप अपनी सैलरी मेंशन कर दोगे कोई भी जो आपने यहाँ डाल रखी है। फॉर एग्जाम्पल आपने 21,000 दी है, तो वहां पे वो आपकी रो अपडेट हो जाएगी। नाउ चेक दैट। इज इट क्लियर बेटा? नाउ यहाँ पे ये देखिए, जहां पे आपकी 21,000 सैलरी है वहां पे आपका नेम चेंज हो चुका है। आर यू गेटिंग इट? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है दोनों क्वेरीज में? No, ma'am. अपडेशन ऑफ ऑल द रोज एंड अपडेशन ऑफ स्पेसिफिक रोज। बेटा बाकी जो कर रहे हैं उनकी एग्जीक्यूट हुई हैं? बेटा बाकी कोई कर रहा है साथ में? Yes, ma'am. एग्जीक्यूट हुई हैं बच्चे आपकी? Yes, ma'am. हो गया. Okay. So the next command is alter command. Alter command is used to modify the structure of the table, and as the structure of the table is to be modified, then we can say that the alter command is schema changed command. ठीक है, जहां पे भी हम schema change की बात करेंगे तो alter command हम वहां पे use करते हैं। And when we use the concept of alter command, then in the case of alter command, we can change the schema by three ways: by adding the new column, by deleting the column, and by change the column specification. And in these three cases, with the alter command, we can use add, drop, and modify. These three keywords are used to change the schema at the time of alteration of the table or modification of the schema of the table. So first one is, how can you add new column? अगर आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है जहां पे आप अपने स्कीमा को चेंज कर रहे हो, so for that purpose we use the add keyword with the alter command. For example, यहाँ पे बेटा आपने लिया है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी. So you want to add the department number also within this table. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नया कॉलम यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और आपकी टेबल का स्कीमा चेंज हो जाएगा. Because at the time of creation of your table in the schema, the user just hold employee number, employee name, age, address, and the salary. That's why the schema is to be changed after the addition of new column. So for that, alter command is used, and the syntax for alter command is alter table, table name, add, new column name, data type, and the size. जैसे आप क्रिएशन के टाइम पे डाटा टाइप और साइज मेंशन करते हो, उसी तरह यहाँ पे आप साइज और डाटा टाइप मेंशन करोगे. सो हियर वी वांट टू चेंज द स्कीमा ऑफ द एम्प्लॉय वन. सो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय वन, देन ऐड डिपार्टमेंट नंबर, बेटा DEPT लिख दो, पूरा मत लिखो. DEPT नंबर, देन डाटा टाइप. नंबर इसकी डाटा टाइप आप लोगे नंबर, एंड देन साइज 10 मेंशन कर दीजिए यहाँ पे. ब्रैकेट क्लोज हो गई. यस, टेबल इज ऑल्टर्ड. ठीक है, टेबल आपकी यहाँ पे ऑल्टर हो चुकी है.
ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर आपका यहाँ पे ऐड हो गया है एंड नो वैल्यू इज टू बी इंसर्टेड इन द डिपार्टमेंट नंबर, दैट्स व्हाई ऑल द कॉलम्स आर ब्लैंक हियर। और ना ही हमने यहाँ पे ये डाला वेदर द डिपार्टमेंट नंबर कंसिस्ट नल वैल्यूज और नॉट नल वैल्यूज। इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So if you want to drop the column or delete the column, then for the deletion of this, the syntax is alter table, table name, drop column and the column name. For example, again from here we want to delete the department number. So alter table, table name, drop column, नहीं बेटा column लिखो पहले, drop column, COLUMN, ड्रॉप कॉलम एंड डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट नंबर को डिलीट करना है। अगेन द टेबल इज ऑल्टर्ड। क्लियर? डिपार्टमेंट नंबर आपका यहां से डिलीट हो चुका है। एंड द लास्ट सिंटैक्स इन द ऑल्टर टेबल इज यूज्ड टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग कॉलम। और कोई भी एग्जिस्टिंग कॉलम जब हम मॉडिफाई करते हैं देन ऑलवेज as the command is schema changed command, that's why here we can change the data type of the column and we can mention the new size. Are you getting it? Yes, ma'am. So for that the syntax is alter table, table name, then modify. Rather than update, here we use the keyword modify. Modify column name. बेटा कॉलम नेम आपका यहाँ पे एग्जिस्टिंग कॉलम नेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय नंबर आपने यहाँ पे लिया, एम्प्लॉय नंबर की पहले हमने डेटा टाइप क्या ली थी? नंबर। एंड नाउ वी वांट टू चेंज द नंबर टू द varchar, कैरेक्टर फॉर्मेशन में हमें उसको लेना है। तो न्यू डेटा टाइप हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड देन न्यू साइज। यहाँ पे एरर आ रहा है बेटा आपका, कॉलम टू बी मॉडिफाइड मस्ट बी एम्प्टी टू चेंज द डेटा टाइप। क्लियर? इट मींस यहाँ पे जो आप कॉलम अपना मॉडिफाई करना चाहते हो वो आपका एम्प्टी होना चाहिए। सो फॉर दैट अगेन वी ऐड द न्यू कॉलम बिफोर द मॉडिफिकेशन। ऐड करो बेटा यहाँ पे पहले, जैसे डिपार्टमेंट नंबर आपने ऐड किया था, ऐड डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ पे आप पहले नंबर ले लो, आपका ऐड हो गया। नाउ ऐड की जगह आप मॉडिफाई करो। अब मॉडिफाई डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ पे varchar लो, साइज 20 कर दो। नाउ इट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि अगर आपके कॉलम में वैल्यूज होंगी तो आप उसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। एंड इफ द कॉलम इज एम्प्टी देन यू कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ योर कॉलम।
वहां पे आप उसकी डाटा टाइप को चेंज कर सकते हो. So in this way you can change the schema of the table with the help of alter command. The next is renaming of the table. How can you rename the table? The syntax for the renaming of table is rename table name to new table name. बेटा रीनेम करो नीतीश. रीनेम employee 1 जो भी आपकी टेबल का नाम था टू EMP कर दो यहां पे. Name is already used by an existing object. Employee 1. Clear? Statement processed. So in this way you can rename the table. Table का नाम आप वहां पे change कर सकते हो. Now the query select start from EMP1. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे आपने टेबल के नेम को चेंज किया था. EMP1 आपका चेंज हुआ था. So in future it works with EMP1. Is it clear now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt? No, ma'am. So the next is the concept of delete operation. When we want to delete the data, then we can delete by two ways. All the rows from a table and a set of rows from the table. सारी की सारी rows भी हम delete कर सकते हैं और specific rows भी. If we want to delete all the rows, then the syntax for that is delete from table name. वहां पे हम सारी की सारी rows को delete कर देंगे. And if we want to delete set of rows, then for that where condition is used. So firstly use where condition beta. Select star from EMP ले लो बेटा. Select star from EMP. EMP1 रहने दो. EMP लो बस. हाँ, ये आपकी EMP टेबल है यहाँ पे जो ऑलरेडी आपकी एग्जिस्ट कर रही है. यहाँ पे अगर हमें कंडीशन बेसिस पे करना है तो राइट डाउन द क्वेरी. सेलेक्ट सॉरी डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय EMP where डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10. ये हमने कंडीशन दे दी कि जहां पे हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर है वो हमें डिलीट करनी है. डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10. बेटा यहाँ पे आपने कंस्टेंट अप्लाई कर रखा है. तो यूज अनदर कंडीशन. डिपार्टमेंट नंबर में भी आपने यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यूज किया होगा. मैम ये टेबल पहले से ही आई है इसमें. ओके. हाँ तो वो वही है बेटा, यहाँ पे यूज हो रखा है. दूसरी कंडीशन देख लीजिए कोई भी अपनी. उसी में देख लेते बेटा कोई EMP में ही. हम यहाँ से करवा लो कोई डिलीट. कंडीशन लगाइए वेयर डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर
बेटा सेल प्राइस कर दीजिए यहाँ पे, वेयर सेल प्राइस, कॉलम नेम लिखो बेटा, वेयर सेल प्राइस greater than 2000. इज इट क्लियर? जहां पे आपका 2000 से ज्यादा था वो आपका डिलीट हो चुका है, एंड वहां पे आपका 2300 था। तो जहां पे भी आप कंडीशन दोगे वो आपकी डिलीट हो जाएंगे। एंड इफ यू वांट टू डिलीट ऑल द रोज, देन डिलीट, बेटा सेलेक्ट स्टार हटा के और यहाँ पे सिर्फ डिलीट लिखो, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट मास्टर। नाउ एग्जीक्यूट इट। 4 rows deleted. Clear? Select star. No data found. ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्राइब लिखो। हाँ, बेटा कैन एनीबडी टेल मी हाउ कैन वी स्पेसिफाई दिस कॉन्सेप्ट? मे बी डिलीट, ट्रंकेट और ड्रॉप। जब आपको मैंने बताया था तो मैंने आपको तीनों में डिफरेंसेस भी बताए थे। मैम डिलीट में वापस डाटा रिट्राइव नहीं कर सकते। बेटा डिलीट में वापस डाटा रिट्राइव आप नहीं कर सकते, बट होता क्या है कि जब आप डिलीट ऑपरेशन यूज करते हो, देन द स्कीमा रिमेन सेम। जो आपका स्कीमा ऑलरेडी था वो आपका यूं का यूं रहेगा, सिर्फ आपका डाटा डिलीट होगा, टेबल का स्ट्रक्चर आपका वहां पे डिलीट नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि यहाँ पे जब हमने टेबल को डिस्क्राइब किया है तो स्कीमा हमारे पास एज इट इज आया है, एंड इफ यू वांट टू add the data in the table, or if you want to insert the new data, then we can do that. Schema remains same after the use of delete command. ठीक है, सिर्फ जो हमारे पास डाटा है वो यहाँ पे डिलीट होगा। एनी डाउट? नो मैम। अभिषेक, अभिषेक, जितेंद्र, बेटा जितने क्लास में प्रेजेंट हैं आप लोगों को क्लियर है ये? यस मैम।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, और कराऊं अभी आगे? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो बच्चे। मैम किसी मतलब पर्टिकुलर कॉलम से, सिर्फ कॉलम से उसका सारा डाटा डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? कौन डिलीट नहीं करना? बेटा वो आपका 1 बाय 1 होगा, या फिर आप ओके उस मैम। कॉलम को ही ड्रॉप कर सकते हो। मैम कॉलम ड्रॉप हो जाता है ओनली बिकॉज कॉलम होता नहीं मेरे से, तो ओनली कॉलम ड्रॉप करने के लिए क्या बेटा कमांड अल्टर होगी? कमांड से ड्रॉप होता है ना आपका कॉलम। सॉरी मैम, सुना नहीं, फिर से रिपीट करना। अल्टर कमांड बेटा, अल्टर कमांड एक बार करके ऑल्टर देखना। कमांड से? हाँ यस मैम। ओके मैम, आई ट्राई। बेटा, उसके बाद नेक्स्ट कमांड है आपकी ट्रंकेट कमांड। करा दूं और? Yes, ma'am. द नेक्स्ट इज ट्रंकेट कमांड। The truncate command is used to empty the table completely. Completely आप अपनी टेबल को empty कर सकते हो with the help of truncate command. And like the delete, it delete all the rows, but the difference between these two is that when we use the truncate command, then we can recreate the table. दोबारा से हम recreate कर सकते हैं, ये दोनों में difference होगा. So, and the syntax for the truncate is truncate table, table name. बेटा एक बार देख लीजिए आपका ये इस पे एग्जीक्यूट भी होती है या नहीं। नहीं बेटा, ट्रंकेट TRUNCATE, CATE। Ma'am, unique primary key in the table referenced by enabled foreign key ऐसा शो कर रहा है। किसमें बेटा? मैम ट्रंकेट कमांड में। एक सेकंड रुको बच्चे। ट्रंकेट टेबल बेटा, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। हाँ, आपके में क्या था बेटा? मैम मैंने जो टैब में ऑलरेडी टेबल है उसको ट्रंकेट करके देखा था, तो उसमें तो यूनिक प्राइमरी की इन द टेबल रेफरेंस बाय इनेबल्ड फॉरेन की ये शो कर रहा है। बेटा वहां पे आपका कोई भी कंस्टेंट आपका होगा जो वो वायलेट हो रहा होगा, दैट्स वाई आपका डिफिकल्ट है। अदरवाइज में भी मेरे ख्याल से ट्रंकेट आपका हो जाना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप कोई दूसरी टेबल एक बार करके देखो। And the last one is the drop command. The drop command again is used to delete all the data from the table, and the difference between the delete and the drop is that in the delete and the truncate, the schema remains, but in the drop command, the schema also deleted. Schema भी आपका वहां पे change हो जाएगा. So the drop table, table name. Object to be described could not be found. It means यहाँ पे आपका schema भी delete हो चुका है.
ठीक है, तीनों में डिफरेंस क्लियर हुआ अब? मैम जो ट्रंकेट से जो डिलीट हुआ है उससे वापस से ड्राइव कैसे करेंगे? बेटा आप कह रहे ट्रंकेट हो मेनली क्या होता है बच्चे, ट्रंकेट में क्या है, हम डाटा को डिलीट कर देते हैं एंड वन बाय वन रोज। जबकि क्या होता है, हमें डिलीट करनी होती है तो हम दो ऑप्शन लेके चलते हैं, या तो वेयर कंडीशन या फिर हम डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। और ट्रंकेट में क्या है कि हम सिर्फ एक ही ऑप्शन लेंगे जहां पे हम पूरे के पूरे डाटा को डिलीट कर सकें। एंड मेनली द ट्रंकेट इज यूज्ड at the time when the transactions are not to be specified। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में हम ट्रंकेट को यूज नहीं करते, डिलीट को हम ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में यूज करते हैं। लेकिन दोनों में स्कीमा एज इट इज हमारा रहेगा। और ट्रंकेट से जब हम टेबल को डिलीट करते हैं या डाटा हमारा डिलीट होता है तो रिक्रिएशन हमारी फास्टर होगी। क्लियर हुआ मैम बेटा? टैब में जो ऑलरेडी टेबल्स है उस पे Yes, ट्रंकेट ma'am. यूज नहीं कर सकते? दोबारा बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? मैम टैब्स में जो ऑलरेडी टेबल है उन पे हम ट्रंकेट कमांड यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा, कर क्यों नहीं सकते? अभी नीतीश ने की है। मैम मैंने ऑलरेडी टैब में जो टेबल थी उस पे किया तो नहीं हुआ, लेकिन जो खुद की क्रिएट की हुई थी उस पे तो कमांड रन हो रही है। बेटा दैट मे बी ड्यू टू बिकॉज योर टेबल, जो आपकी टेबल वहां पे प्रेजेंट है, ऑल दीज आर ऑफ परसिस्टेंट इन नेचर। वो आपकी परसिस्टेंट है। एंड इट मे बी वेरी, ये आपकी वेरी भी कर सकती हैं कि कहीं पे आपके डिलीट हो जाएं। अदरवाइज जैसे आज आपने यूज किया है उनको और आपकी ट्रंकेट हो रही हैं, देन अगेन वो आपकी नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे अपना ओरेकल तो दोबारा से वो आपकी प्रेजेंट होंगी। सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टेबल, वेदर दीज आर ट्रांजिएंट इन नेचर और दीज आर परसिस्टेंट इन नेचर। अगर वो परसिस्टेंट हैं तो वो आपकी डिलीट नहीं होगी। ओके मैम। Now the next concept is creation of table from another table. Creation of table from another table, and the syntax for that is create table, table name, column name, then as select column name from table name। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें एक टेबल क्रिएट करनी है किसी दूसरी टेबल से, और जब हम कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो वहां से जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तो कॉलम नेम हम दूसरी टेबल के ही यूज करेंगे। सो इन दिस केस हियर वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स टेबल एंड द टारगेट टेबल। सोर्स टेबल हमारी कौन सी होगी जहां से हम डाटा को ले रहे हैं, और टारगेट टेबल हमारी कौन सी होगी जो हम क्रिएट कर रहे हैं। बेटा आर यू गेटिंग इट? yes, ma'am. बेटा वी वांट टू क्रिएट द टेबल फ्रॉम अनदर टेबल, और जिस टेबल से हम डाटा को लेंगे वो हमारी सोर्स टेबल होगी, और जिस टेबल में डाटा को लेंगे वो हमारी टारगेट टेबल होगी, कि डाटा को हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं। इज इट क्लियर नाउ? And in this way we can create the new table, and the syntax for that is create table, table name, column name, as select, then column name from the table name, जिस टेबल से हमें वो select करनी है। So here we want to create the table employee 2, create table employee 2। यहाँ पे कौन से कॉलम्स आपको लेने हैं वो आप मेंशन करोगे। अब नेम ADD,
ये आपका एड्रेस हो जाएगा। सिर्फ ADD लिखना बेटा, ADD। ये आपके कॉलम नेम हो गए। मीन्स हम सिर्फ 2 कॉलम को लेके नई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। एज सेलेक्ट, उसके बाद हम यहाँ पे कॉलम नेम देंगे। कॉलम नेम हमें कौन से लेने हैं यहाँ पे, जो हमने वहां पे एम्प्लॉय नेम लिया था और एड्रेस लिया था। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम एंड एड्रेस। एंड नहीं बेटा, कॉमा लगाओ आप। एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय 1। Invalid identifiers. Employee name, address. बेटा सिंटेक्स तो आपका बच्चे यही रहेगा। वन टू, ये भी ठीक है बेटा। कॉलम नेम आपने ठीक लिए हैं। Yes, ma'am. क्रिएट टेबल, टेबल नेम बेटा। और किसी की क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है ये वाली? मैम इनवैलिड आइडेंटिफायर इशू कर रहा है। बेटा एक बार चेक करना पड़ेगा बच्चे ये फिर। मैम हमें सोर्स टेबल से डाटा ही इंसर्ट करवाना है ना न्यू टेबल में। बेटा डाटा नहीं, हमें यहाँ पे कॉलम लेने हैं कि हम इन कॉलम को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और सिर्फ जो कॉलम हमने लिए हैं वो हम डाल रहे हैं यहाँ पे। डेटा के लिए मैम, अगर उसके लिए डाटा डाटा के के लिए लिए तो तो बेटा हम कमांड है इंसर्ट अलग से। कमांड का यूज करेंगे। तो मैम वो यूज करके और उसके बाद डिलीट कर दे उसके अंदर का डाटा सारा, फिर हमारे हम्म कॉलम नेम्स तो रह ही जाएंगे। बेटा वो मैम वो इंसर्शन के लिए इंसर्ट। है, बट ये क्रिएशन के लिए भी तो है ना, कि क्रिएशन हमें कैसे करनी है। ओके मैम। बेटा एक बार ये जो स्पेस आपने दे रखा है बच्चे, ये स्पेस हटाओ। यहाँ नहीं, आगे से पहले जो दे रखा है एक बार चेक करके देखो। एम्प्लॉय 2
नहीं बेटा, चेक करनी पड़ेगी बच्चे ये मुझे, फिर मैं बताती हूँ आपको। बल्कि इसके Okay, साथ ma'am. साथ ये भी हो गया कि इंसर्शन वाली भी मैं चेक कर लूँ एक बार। चलो ये मैं चेक करती हूँ बेटा, मैं बताती हूँ आपको फिर, ठीक है। Okay, ma'am. आज के लिए इतना ही बस, बाकी आप देख लीजिएगा एक बार अगर हो जाए तो, नहीं तो मैं तो चेक करती हूँ फिर। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए गुड डे नाउ। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. ओके बेटा। नीतीश, थैंक यू बच्चे। Okay.